Hello everyone, good evening. Welcome to day 9. I hope all are doing good. So it's Friday today. After today, we all will have our weekends. हम सभी लोगों आज Friday के बाद actually wherever you are doing job or whatever you are doing, you always feel like Friday is relaxed day, है ना? After Friday, you feel like okay, now I am going to be doing the job. So voice is audible. Okay. So without further wasting anything, let's start our class. And further, we will at the end, we will discuss some miscellaneous things. Let's start. Let's directly dive into the class. Screen सबको दिखाई दे रही है? All are able to see the screen? Okay. So now comment section is getting off. After that, once the class is over, for 5 minutes, I will be sharing the updates and everything, and we will then after that end the class. Okay, chaliye. If you feel low, if my voice is low, it's just because that I am too much exhausted, due to which maybe you will be feeling that I am not in that energy which I am always there, but still try to bear with me. And chaliye, without further delay, let's start our class. And further, we will discuss very important things today. So please focus in absolute manner. Now you are going to learn in the technicals in a different manner. ठीक है? तो थोड़ा सा उसके लिए you have to focus. Okay? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, I told you all a very important thing. I hope you all remember. Stock market is gamble, then LIC is the gambler. If a stock market is the gambler, then LIC is the gambler. So this quote is very much famous in trading circle. So now I feel you know what is the meaning of it. Okay. Now today we are going to discuss Nifty weightage. ठीक है? आप एक चीज को समझिए. You have to understand one thing. One is Nifty weightage and second is Bank Nifty weightage. Basically मैं ये दो चीजें आपको समझा रहा हूँ. बाकी whatever the index you are interested in trading, you can search and you can have the data with you. But this data you should always have with you. क्यों क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, when you start living your life, when you start living it in a very different manner, when you start living it in a very different manner, you always feel like कि सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर, है ना? अ चेन इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द चेन ओनली. ठीक है? कैसे लिंक्ड है आपको मैं बताता हूँ. हाउ द चेन हैज बीन लिंक्ड, लेट मी टेल यू. जैसे आप सिंपल सी चीज को देख लीजिए. आप खाना खाते हैं, योर फूड. ठीक है? फूड हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जैसे फूड में एक चीज की भी मिसिंग हो जाएगी, वन थिंग इज इवन मिसिंग. ठीक है? अब फूड के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. मान लीजिए यू आर मेकिंग अ गुड vegetable sabji for you, then you will have the vegetables, then you will have the proper masalas, exact timing of the things, different things. These are the constituents. अगर इसमें से भी एक भी constituents is missing, then your sabji is not going to be tasty. Same is like the market. ठीक है? मार्केट किससे बना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. मार्केट किसने बनाया है? मार्केट हमने और आपने ही तो मिलके बनाया है. ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अदरवाइज विच डिस्कस्ड यस्टरडे. कॉम्बिनेशन ऑफ individuals and otherwise. Combination of individuals and otherwise, we have discussed it, है ना? तो हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का एक प्रॉपर पूरा का पूरा एक दायरा है ना? एक प्रॉपर पूरा का पूरा एक सेटअप है जिसके अंदर ये सारे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, है ना? उसी तरीके से लाइक
बिगेस्ट टू ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इन द लाइफ यू हैव योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा या एक चीज भी ऊपर नीचे होगी तो इट विल अफेक्ट योर लाइफ, लाइक योर स्लीपिंग शेड्यूल, योर ईटिंग शेड्यूल, है ना, एंड योर हैबिट्स, वट एवर द थिंग्स आर देयर। सेम इज लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको किसी भी चीज को बहुत अच्छे से जानना और समझना है, इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस मार्केट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू कैन। ठीक है। अब वो कैसे होगा? तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी, कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी क्या हैं। ठीक है। ये कैसे, इसमें कौन सा सेक्टर अभी सबसे तगड़ा चल रहा है, किस सेक्टर से निफ्टी को ग्रोथ मिल रही है, किस सेक्टर आज, आज आप देख रहे होंगे आज का चार्ट, अगर आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया था चार्ट में, निफ्टी वाज डाउन, बैंक निफ्टी वाज अप, पूरा का पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट था आज। दिस वाज द इंडेक्स मैनेजमेंट। आप ग्लोबल मार्केट्स को देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट्स इज लाइक ब्लीडिंग, ब्लीड कर रहा है। इंडियन मार्केट्स आज नहीं कर तो कल, देश सवेर वी हैव टू फॉलो द ग्लोबल मार्केट। हम कितने दिन अपने आप को ये पीठ थपथपा के शाबाशी देंगे कि नहीं वी आर द टॉप मार्केट इन द वर्ल्ड, हमें यूएस से, हमें जापान से, हमें चाइना से किसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी के मार्केट से फर्क नहीं पड़ता, हम वी आर वेरी स्ट्रांग। बट कितने दिन हम इस चीज को प्रूव कर पाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एट एनी कॉस्ट, है ना। तो ऑन दैट बेसिस आप आज देख रहे होंगे निफ्टी वाज 200 पॉइंट्स डाउन, बैंक निफ्टी वाज डाउन, बट अगेन इट वाज बाउंसिंग बैक। डाउन जा रहा था लेकिन फिर बाइंग आ जा रही थी उसमें। ठीक है। तो क्रेजी रिटेलर्स वेयर बाइंग इट, है ना, क्रेजी रिटेलर्स जो है उसमें बाइंग लेके हर हाल में बार बार आ रहे थे। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा था, इसका रीजन पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वाई दिस वॉज हैपनिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन। अगर हमें रीजन नहीं पता हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए, मतलब इनिशियल फेज में टेक्निकल्स, इंडिकेटर्स, बाकी सारी नॉलेज जो भी है वो बाद में आएगी। ठीक है। इंडिकेटर्स देख के यू शुड अंडरस्टैंड, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, मतलब एडवांसेज डिक्लाइन है, इतने सारे स्टॉक्स आज ऊपर हैं, इतने सारे स्टॉक्स आज नीचे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट एक अलग फेज, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आज इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, आज प्रॉपर मार्केट अपने हिसाब से ऑनेस्टली मूव दे रहा है, या फिर कुछ अलग हो रहा है। ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। ठीक। तो उन सब के लिए आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वेटेज पता होना चाहिए। आपको हर हाल में मार्केट का पी बाई ई रेशियो पता होना चाहिए। पी बाई ई क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एक ट्रेडर के लिए बहुत जानना जरूरी होता है। पूरा पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू लर्न दी होल इकोनॉमिक्स। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे पी बाई ई जो है, ये हमेशा, ये आप चेक कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आप हर किसी का चेक कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन चेक इट वेरी इजली। ठीक है। इफ पी बाई ई रेशियो इज 27-28 के ऊपर, तो ये बहुत है। ठीक है। ये बहुत है। अगर पी बाई ई का रेशियो 27-28 के रेंज में है, ठीक है, अगर पी बाई ई का रेशियो 27-28 के ऊपर है, तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा पी बाई ई को 27-28 के नीचे, अपनी कंपनी को पढ़ाई, अपनी कमाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा पी बाई ई का रेशियो हाई होगा, पी बाई ई का जो रेशियो है, प्रॉफिट टू अर्निंग का जो रेशियो है, जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा मार्केट के क्रैश होने का चांसेस रहता है। ठीक है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको जब खोल के जा रहा हूँ बताने, तो उन चीजों को मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप उन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ठीक है। चलिए। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, गूगल में जाके सीधा टाइप करेंगे निफ्टी वेटेज स्टॉक लिस्ट। ठीक है। फर्स्ट काम। सेकंड, वी विल डायरेक्टली गो ऑन, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली गो इन निफ्टी 50 इक्वल वेटेज करके एक
एक आपके सामने ये खुलेगा, ये प्रॉपर निफ्टी 50 की अपनी इंडियन एनएससी की अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे यू विल सी निफ्टी 50 के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, निफ्टी 50 के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ आ जाके आपको दो चीजें डाउनलोड करनी है, एक तो फैक्ट शीट, ठीक है, और दूसरा आपको डाउनलोड करना है इनका इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दो चीजें यू हैव टू डाउनलोड। ठीक, नंबर वन इज फैक्ट सेट, नंबर टू इज इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम इसको अभी थोड़ा देखेंगे डिटेल में कि ये कैसे क्या फिर फर्दर काम करता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये जो स्क्रीन पे राइट करने की जो पेन है उसको मैं लेके आ जाऊँ। ठीक है, ये आपके पास इसका डेटा हमेशा होना चाहिए, और ये कहीं से भी पेड नहीं है, कहीं से भी फ्री है। एनएसए की वेबसाइट पे आप इसको जब चाहें तब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, फिर हम लोग फिर फर्दर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट निफ्टी, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वेटेज। हम लोग निफ्टी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड उसके वेटेज की फर्दर फिर आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा निफ्टी वेटेड टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहे हैं 50। लॉन्च डेट इज अप्रैल 13 2017। बेस डेट जो भी ये सारी चीजें उसको हटाइए, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है फर्दर। हम हमें जो लेना देना है हम उसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको कुछ समझाया। निफ्टी 50 में सेक्रेटोरियल रिप्रेजेंटेशन, निफ्टी 50 में सेक्रेटोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था। टोटल 12 सेक्टर्स होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, आपको 12 सेक्टर्स मिल जाएंगे, मैंने आपको कल पढ़ाया था ये। फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज्यादा वेटेज है 21.09। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी में जब मूवमेंट होता है तो निफ्टी में मूवमेंट ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्स्टिट्यूएंट है 12.60%। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये इसका क्या लेना देना है इन सब चीजों से। अरे, मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट में मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, मार्केट अप क्यों जा रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, रेंज बाउंड क्यों है, सब यहां से पता चलेगा, सब यहीं से देखेंगे हम। ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का जो टोटल वो है वो 11.85 है। फास्ट मूविंग का इस तरीके से पूरे ये सेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसमें हेवी वेट फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम बात कर लें तो एचडीएफसी आ जाता है। ठीक है, आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में चले जाएं तो इसमें आपको रिलायंस चलाएगा, ऑयल में भी रिलायंस चलाएगा, मेटल एंड माइनिंग में अडानी चलाएगा, पावर में भी रिलायंस एंड अडानी चलाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी फिर आपको अडानी आ जाएगा, कंज्यूमर डिलीवर्स में भी रिलायंस एंड अडानी आ जाएगा। तो बात करें अगर इस तरीके से तो रिलायंस का सबसे ज्यादा एक तरीके से ऑयल और गैस, जो ऑयल गैस है उसका जो कंपोनेंट है वो 16% होता है। नॉर्मल मैंने जो एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में बिठाया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये टोटल परसेंटेज है। 100% अगर निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट करता है तो कौन से सेक्टर का कितना परसेंट रिप्रेजेंटेशन है, यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम इट। तो ऑयल एंड गैस का सबसे ज्यादा है अपने कंट्री में। ठीक है, हमेशा ऑयल के प्राइसेस को इंटरनेशनल लेवल पे यू हैव टू मॉनिटर, आज ऑयल का क्या प्राइस है, क्योंकि ऑयल का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वो हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम तेल खरीदते हैं, वी आर बायर्स, वी आर नॉट एक्सपोर्टर्स। हमारे यहाँ तेल एबंडेंस में नहीं है। हमारे इकोनॉमी में हमारे जीडीपी का, हमारे टोटल जो हमारे देश का खर्चा है उसका एवं 50% कहाँ एक्सपेंस होता है, एक्सपोर्ट जो हम चीजें करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपेंस होता है, ऑयल में होता है। बैंक्स का सबसे ज्यादा जो बैलेंस शीट जहां जाता है वो कहाँ है, वो ऑयल में है, सारा पैसा ऑयल में लगा हुआ है। अगर ऑयल रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी, ऑयल नहीं है तो इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अगर पर डॉलर, जैसे कल मैंने rediff.com पे आपको दिखाया था, आपने वहां पे ध्यान दिया होगा, जो इंटरनेशनल इंडिसेज हैं उसमें एक कंपोनेंट और भी था, ऑयल। तो ऑयल अगर भाग रहा है बहुत ज्यादा तो ऑटोमेटिकली बैंक्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो बैंक्स कोलैप्स करेंगे। तो इट दिस ऑल इज इकोनॉमी, दिस ऑल इज मनी गेम। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें टोटल जो हेवी, टोटल एक छत्र राज जो कर रहा है निफ्टी में वो है आपका रिलायंस, अडानी। ठीक है, इस तरीके से।
फर्दर। अब आप यहां देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, P/E रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी कितना है, 24.86। ठीक है, मैंने क्या बताया, 27-28 तक है तो बहुत ज्यादा है, 27-28 के अंदर है तो ठीक है। अगर किसी कंपनी का P/E रेशियो 27-28 है, इट इज वेरी वेरी ज्यादा, उसमें कंपनी को अपनी कमाई को बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉफिट टू एक्सपेंसेस, पी का मतलब क्या हो गया प्रॉफिट, ई का मतलब क्या हो गया अर्निंग, जो उसका अर्निंग है, जितना कमा रहा है उससे ज्यादा उसका खर्चा है। तो जैसे आपकी कमाई 100 रुपए है, आपका खर्चा 500 रुपए, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप कभी से कभी प्रॉपर आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी आपकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं, व्हाट यू वांट टू मैनेज, वो सब का सब कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है, इट इज लाइक हेयर ऑल्सो। तो आपको, अगर आपका P/E रेशियो, हमेशा ये चेक करते रहना है, एवरी 3 मंथ्स, हर क्वार्टर में आइए, इसको चेक कीजिए। ठीक है, कैसे क्या चल रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस 2.34, इन्फोसिस 2.27, टाटा मोटर्स 2.27। ये बता रहा है टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, वेटेज के हिसाब से टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट अभी कौन कौन से हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, आप यहां से इस चीज को फिर फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं, P/E को आप यहां से फर्दर फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर P/E जो है आपको हमेशा 27-28 के आसपास दिख रहा है निफ्टी में, मतलब मार्केट में कहीं से भी अब एक अच्छे करेक्शन की गुंजाइश बन सकती है। ठीक है, बीइंग अ ट्रेडर आपको हर तरीके से हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रोसेस इट। ठीक है, एक तो ये शीट हो गई, ये निफ्टी की फैक्ट शीट है ना। अब जो दूसरी शीट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये है इनके इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट अब हम ये देख लीजिए, 50 कंपनी जो निफ्टी के अंदर हैं, निफ्टी 50 के अंदर, ये हमेशा चेंज होता रहता है, एवरी क्वार्टर यू कैन अपडेट योर सेल्फ। निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज कौन कौन सी हैं, हाउ मेनी टोटल 50 कंपनीज, विच कौन कौन से कैसे कैसे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अडानी से स्टार्ट होता है ना, सारा इसमें बजाज फिनसर्व, एक्सिस, सिप्ला, कोल इंडिया, डिवीज लैब, सारे ये सारे करते हुए, है ना, ये आपको पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज करते हुए, लास्ट में फिर विप्रो, ये टॉप 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी है। निफ्टी 50 जिसको आप बोलते हैं, वो इन्हीं 50 कंपनियों से मिलके बना हुआ है। तो दिस इज देयर फैक्ट शीट। ठीक है, ये डेटा हमेशा आपके आपके पास दो डायरी होगी बेसिकली, जो आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे, द नोट्स विच यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर सेल्फ, या आप हमेशा एज अ ट्रेडर जो आप चीजें करते हैं, उसमें आपके पास एक दो डायरी होगी, एक आपकी डायनामिक डायरी होगी जिसमें आप हर दिन के हिसाब से चीजों को नोट डाउन करेंगे, जब तक वो आपको ये इस तरीके से ना हो जाए, इट इज नॉट लाइक दैट, ये तब तक वैसे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जब तक आपको ये ना लग जाए कि यू कैन इजिली मॉनिटर द थिंग्स, मतलब आप देख के अब चीजों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, जब तक आप याद रखने लायक नहीं बन पा रहे हैं, यू विल हैव टू मेक योर दी डायनामिक नोट्स। ठीक है, आपको डायनामिक नोट्स बनाने पड़ेंगे, और एक आपका स्टैटिक नोट्स होगा जिसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, उसको आप वहां पे फर्दर फिर लिखेंगे। ठीक है, इट इज लाइक दैट। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग फिर फर्दर, तो ये हमने निफ्टी का वेटेज देखा। अब हम हमारे लिए जो हमारा सबसे फेवरेट है उसके बारे में भी फर्दर बात कर लेते हैं। तो यहां से गेटिंग इट ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा सेक्टर, जो सेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, जो सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो सेक्टर अगर मूव करेगा तो वो निफ्टी को भी मूव करेगा। ठीक है, इट इज लाइक दैट। अब इसी तरीके से फिर हम फर्दर बैंक निफ्टी का वेटेज देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, निफ्टी बैंक में जाइए, यहाँ पे खोलिए। ठीक है, डेटा आपके सामने है, यहाँ से खोल दीजिए पहले फैक्ट शीट, फैक्ट शीट खोल के इसको देखिए पूरा प्रॉपर। ठीक है, इसका P/E रेशियो कितना है, बैंक्स का अपना P/E रेशियो इज 15, मतलब इट इज वेरी गुड, बैंक्स आर रियली होल्डिंग द इंडियन इकोनॉमी इन अ वेरी गुड मैनर। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको कल बताया था, टोटल कितने बैंक्स हैं, कल आपको मैंने ये सारी चीजें इसकी बताई थी, और उसमें जो टॉप बैंक्स हैं अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया भी था, टॉप 5 बैंक्स कौन कौन से हैं, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक। ठीक है, इन पांचों के चार्ट की आपके पास डेली एनालिसिस होनी चाहिए, डेली। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इफ यू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, देन यू शुड हैव दी नॉलेज ऑफ दीज 5 चार्ट्स डेली, ये आपके सामने, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो कायदे से, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको आगे जाके समझाऊंगा। अगर बीइंग अ बिगनर, अब तो खैर बहुत ज्यादा
प्रो एक्सपीरियंस आ गया है तो देख के समझ में आता है कहाँ कैसे क्या चल रहा है। बट बीइंग अ बिगनर, बैंक निफ्टी का आपके पास एक आवरली चार्ट खुला होना चाहिए, ठीक है, एक 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर आपका ये बैंक निफ्टी के ये दो चार्ट के अलावा फिर ये पांचों बैंक के चार्ट खुले हुए होने चाहिए। आपको इनका डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, इनका वीकली सपोर्ट रेसिस्टेंस पांचों बैंक्स का आपको एकदम मुजबानी याद होना चाहिए। इन पांचों में से किसी भी बैंक में मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी वैसे ही पी साइड में या सी साइड में मूव करेगा, ठीक है। इतना भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग को समझना, ठीक है। अरे भाई आप, मैंने क्या बोला, सब्जी बनानी है, इफ यू वांट टू कुक द वेजिटेबल, इफ यू वांट टू कुक अ वेजिटेबल सब्जी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कुछ भी गड़बड़ होगा, चीजें बदल जाएंगी, चीजें फिर वैसी टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे, इवनिंग में कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे उसका रेसिस्टेंस है, अगेन उसका फिर आवरली टाइम फ्रेम पे फिर लाइव मार्केट में एनालिसिस कीजिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, रेसिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ड्रॉ कर लीजिए, मार्केट का ट्रेंड पहचान लीजिए, और फिर बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कहाँ पे है, कौन ब्रेकआउट लेवल पे है, कौन ब्रेक डाउन लेवल पे है, कहाँ पे इसका क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। अगर ये सारी चीजें आप डेली, आप में से बताइए कितने लोग ये चीजें करते हैं, और आप फिर भी सोचते हैं कि आपकी ट्रेडिंग मस्त हो जाए, सुपर सुपर वाला हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है यार। यू विल हैव टू गिव एफर्ट्स टू अर्न मनी, इजी मनी नहीं है, यू विल हैव टू गिव योर एफर्ट्स, ठीक है। आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को इन पांचों बैंक का एग्जैक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल पता है कि हाँ ये इस बैंक का यहाँ है, 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 इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है मतलब बैंक निफ्टी मूव करेगा। आप देखिए आज पूरे मार्केट ब्लीड कर रहे थे रेड में, अकेले एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाल के रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, बताइए आप, ठीक है, यू कैन इजिली टेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से निफ्टी 50 में आपने निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, सबका सेक्टोरल इंडिसेज आपको पता नहीं आज कौन सा सेक्टर ऊपर है। इतना भी बड़ा रॉकेट साइंस, इट इज नॉट लाइक अ बिग रॉकेट साइंस टू सर्च द स्टॉक्स यार। आप लोग सोच कहाँ से स्टॉक्स ढूंढू कहाँ, अरे कॉमन सेंस लगाओ यार। निफ्टी 50 में आप गए, निफ्टी 50 में आपने rediff.com, कल मैंने आपको एक साइट बताई, वहां पे आप गए, वहां से आपने सेक्टोरल इंडेक्सेस निकाला, कौन सा सेक्टर ऊपर है, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर ऊपर है और कौन कौन से सेक्टर जो है वो नीचे हैं। आपने सेक्टर देख लिया, सेक्टर के हिसाब से आपने जाके फिर उसके स्टॉक्स को देखा, उस स्टॉक में आप टॉप गेनर और टॉप लूजर ढूंढ के आ गए। अब उठा लीजिए ना, 10 स्टॉक टॉप गेनर में से उठा लीजिए, 10 स्टॉक टॉप लूजर में से उठा लीजिए। डेली का 2% बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, 2% 3% 4% कैपिटल के हिसाब से स्टॉक ऑप्शन में। लेकिन वही है, सबको नशा है बैंक निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अलावा अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ है, फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, ये ऐसे ही है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा तोप कोई नहीं समझाने जा रहा है आपको कुछ भी कभी अपनी लाइफ में। आप इस चीजों से हमेशा दूर रहिए, ठीक है। आप खुद भी इन चीजों को कर सकते हैं, बट ये चीजें आपसे टाइम मांगती हैं, आपसे आपका पेशेंस मांगती हैं, आपसे आपका डिमांड मांगती हैं। दीज थिंग्स रिक्वायर योर टाइम, ईच एंड एवरी डिटेल्स दे रिक्वायर, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक ऑप्शंस में ही ट्रेड करके आदमी डेली का 2-4% निकाल सकता है, इंडेक्स तो ट्रेड करना बहुत दूर की बात है, ठीक है। टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स सेक्रेटोरियल इंडेक्सेस के हिसाब से देख सकते हैं भाई। मेरे को आप बताइए, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, 5 स्टॉक नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में डेली के डेली जिसमें किसी में भी तो मूवमेंट हो रहा होगा, सबके सब फ्रीज थोड़ी हो जाएंगे। आखिर डेली बैंक निफ्टी जो 250-300 पॉइंट ऊपर जाता है, 250-300 पॉइंट नीचे आता है यार, कहीं से कोई तो स्टॉक मूव कर ही रहा है ना वहां पे, ठीक है। बट यही है कि इसमें ये एक दिन में नहीं होगा, दिस विल नॉट कम इन वन डे, इट विल टेक यू एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, 5-6 महीने लगेंगे, तब जाके आपकी नजर पकड़ मजबूत होगी, ठीक है, कि कहाँ पे इसका वीकली रेसिस्टेंस है, कहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस है, कहाँ क्या है, ठीक है। तो चार्ट ऐसे ही बनेगा आपका जब आप बनाने बैठेंगे, व्हेन यू विल ट्राई, ठीक है, जब आप मतलब टर्मिनल पे बैठेंगे बीइंग एज अ ट्रेडर। मैंने आपको कल बताया ना, 5 रीजन्स में बटा हुआ है टोटल ट्रेडिंग, जो आपका ट्रेडिंग है वो नॉर्मली 5 रीजन्स में बटा हुआ है। कौन कौन से रीजन्स मैंने आपको कल बताए थे? सबसे पहला था ग्लोबल, ठीक है, उसके बाद था फिर आपका रीजनल, ठीक है, रीजनल के बाद फिर मैंने आपको बताया था नेशनल,
फिर आपको बताया था मैंने इंडस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिकली फिर मैंने आपको बताया था एक्सचेंज। सब पे नजर होनी चाहिए। ग्लोबल इंडिसेज कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, निकेई, ठीक है, हैंगसेंग। अब जैसे देखिए, मेरे जैसा अगर कोई समझदार ट्रेडर है, मैं अपने आप को समझदार बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ी है, मैं समझदार नहीं हूँ, बस छोटा थोड़ा मोड़ा जानता हूँ। मेरे जैसा कोई ट्रेडर है तो उसकी नज़र है अभी कहाँ पे, हैंगसेंग के मार्केट पे नज़र है, उसकी नज़र निकेई पे है। क्यों उसकी नज़र हैंगसेंग के मार्केट और निकेई के मार्केट पे है? क्यों उसकी नज़र US मार्केट्स पे है? क्यों है? क्योंकि उसको दिख रहा है हैंगसेंग चाइना का जो इंडेक्स है, एक टाइम में 2015-16 पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चाइना सुनाई देता था। चाइना चाइना चाइना, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, बिगेस्ट इंडस्ट्री सेटअप, एवरीथिंग चाइना, सीधा चाइना, ठीक है। चाइना में एक टाइम पे उसके स्टॉक में, हैंगसेंग में आप देखेंगे इतना खतरनाक बूम आया। जैसे अपने इंडिया में अभी हो रहा है ना, 25,000 हमने निफ्टी में टच कर दिया, बैंक निफ्टी में 50,000 टच कर दिया। पिछले साल हम अराउंड 36,000 38,000 पे घूम रहे थे, इस साल हमने 50,000 क्रॉस कर दिया है, ठीक है। लाइक दैट सेम वहां पे भी था, एग्जैक्टली हम भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बट इसका इसका हाल ऐसा हुआ कि 2016-17 तक अगर इसने एक सर्टेन पॉइंट पे जो हाई बनाया, 6 साल से उसी रेंज में अटका पड़ा हुआ है, जहां से ब्रेकआउट दिया और जहां हाई दिया फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आप हमेशा आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, सारी चीजें देखते होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां की मार्केट स्टेबल हो गई, स्टेबलाइज हो गई, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई। ग्रोथ जो है वो, स्पीड जो उसकी थी वो डिक्रीज कर गई, ठीक है। आप जापान की मार्केट को देखिए, निकेई को आप देखेंगे, आप देख लीजिएगा निकेई जो अभी करंटली जो निकेई मार्केट है, निकेई ऑफ जापान, ये बहुत सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली मेरी तरफ से सुनने को आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान से हमेशा देखना पड़ेगा, ठीक है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना। जैसे आप निकेई की मार्केट को देखेंगे ना, तो कुछ दिनों तक, बस कुछ दिन पहले तक निकेई का मार्केट जो था, डेट वाज एबव समवेयर अराउंड 41,000, 41,500, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, जापान आपको पता है टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है वर्ल्ड के, हम अभी टॉप 4 में, टॉप 5 में हम भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर जापान हैज कम डाउन टू 16%, 16% की गिरावट है विद इन 6 मंथ, ठीक है। 16% इज ह्यूज, बहुत होता है 16%, ठीक है। हमारे हिसाब से 16% अगर कर लें अपने इंडिसेज का, बैंक निफ्टी का ही अगर कर ले, तो हम समवेयर अराउंड 42,000 41,000 पे बैठे होंगे, ठीक है। तो सारे मार्केट्स इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, और हमारे यहाँ बस रिटेलर जो है बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप किए जा रहा है, ठीक है। तो इसका, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, ठीक है। इसका जो है खतरनाक अंजाम होगा, बट होगा, जरूर होगा, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूएस टेक 100 मतलब जो टॉप टेक्निकल टेक्नोलॉजी की जो टॉप 100 कंपनीज है, ठीक है, जितना हमारे निफ्टी 50 का मार्केट कैप है ना टोटल, जितना हमारे निफ्टी 50 का मार्केट कैप है ना टोटल, उसका टोटल मार्केट कैप का उससे ज्यादा आप कह लीजिए, वो अभी तक इसमें वाइप आउट हो चुका है US टेक 100 में, ठीक है। वाइप आउट हो चुका है, मार्केट कैप जितना हमारा टोटल निफ्टी 50 का होगा, वो मार्केट कैप का वैल्यू US टेक से अभी कुछ ही वीक्स के अंदर दिस हैज बीन वाइप्ड आउट। तो इंडिकेशंस हर जगह से मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने हमेशा लोगों को समझाया भी, हमेशा मैं बोलता हूँ, पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट नहीं है। 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, वो प्रॉफिट नहीं। आज देखिए निफ्टी मेटल्स की, निफ्टी मिड कैप की क्या जबरदस्त पिटाई हुई है कि नहीं? आप चार्ट देखते होंगे, आपने लगा रखा होगा, ठीक है। मतलब मैं एक सिंपल एनालिसिस बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल सी एनालिसिस बता रहा हूं कि आप सीधा सीधा निफ्टी 50, आप मतलब कुछ दिनों के बाद आपके लिए इतना इजी हो जाएगा ना मार्केट को समझना, कि आपको लगेगा यार मतलब कहाँ ही फंसे पड़े थे, है ना। निफ्टी 50 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके हिसाब से आज आप देखेंगे, निफ्टी आईटी अप्रोक्सीमेटली इट वाज 900 पॉइंट्स डाउन टोटल, बंद हुआ है 980 पॉइंट डाउन। मैंने आपको दिखाया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में निफ्टी आईटी की क्या वैल्यू है, वो मैंने आपको दिखाई।
आपने फिर उसके बाद फर्दर देखा आपने मिड कैप, ठीक है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप देखा आपने। मिड कैप आपका लगभग 500 पॉइंट डाउन था। मेटल, निफ्टी मेटल 985 पॉइंट्स डाउन था। ठीक है, जब इतने सारे जो इसके हेवी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये जो डाउन है, तो निफ्टी अपने आप ऊपर कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती है ना। निफ्टी को शॉर्ट करना था आज। सपोर्ट रेसिस्टेंस खाली पता होना चाहिए था बस, कहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट है, कहां पे एग्जैक्ट रेसिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट उस सपोर्ट पे, उस रेसिस्टेंस पे जा रहा था, वहां से मार्केट को शॉर्ट करना था आराम से। आज मार्केट निफ्टी आज कितना 300, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स गिरा है। बंद हुआ है 293 के आसपास, 293 पॉइंट्स डाउनफॉल के आसपास बंद। मार्केट को शॉर्ट करना था। आपको पता है जिधर निफ्टी चल रहा है, देर सवेर बैंक निफ्टी को भी जाना ही पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आया था मार्केट में जब निफ्टी वाज अराउंड 50 पॉइंट्स डाउन, बैंक निफ्टी उस समय 150 पॉइंट्स अप था। ठीक है, आपको वही बोल रहा हूं, आपको आपकी लर्निंग पे यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑन योर लर्निंग। आपको आपकी लर्निंग पे भरोसा होना चाहिए। यू शुड हैव दैट फेथ ऑन योर लर्निंग। ठीक है, आपको पता है कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी, ना कि निफ्टी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैंक निफ्टी। पूरे दिन में आपको बैंक निफ्टी ने कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दी, बार बार आपको छकाया, है ना। जहां जहां डिप आ रहा था बाउंस आ जा रहा था, डिप आ रहा था बाउंस आ जा रहा था। बट आपको पता होना चाहिए जहां पे उसका रेसिस्टेंस लेवल है, जहां पे उसका सपोर्ट लेवल है, लास्ट में आप इजिली मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग तो ऑटोमेटिकली जहां पे, चलो डे लो नहीं तो रहा या कुछ भी है, बट जहां पे निफ्टी है, निफ्टी 300 250 पॉइंट नीचे है 2 बजे। बैंक निफ्टी उस समय लगभग 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स नीचे था मात्र। ठीक है, उसको आना है। बैंक निफ्टी विल हैव टू कम टू सिंक विथ निफ्टी। निफ्टी से उसको सिंक करना ही पड़ेगा अपने चार्ट को। हुआ? उतना नहीं हुआ। अगर कायदे से अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिरा है, तो बैंक निफ्टी को इसका 2.5 टाइम्स, मतलब 700 पॉइंट के आसपास निगेटिव में होना चाहिए था। बट बैंक आज स्ट्रॉन्ग थे। एचडीएफसी ने, एचडीएफसी और कोटक ने आज बचा लिया। बजाज फाइनेंस, सारे रेड में थे आज, टोटल रेड। मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ। अब वो ट्रेडिंग व्यू खोलूंगा, सब दिखाऊंगा, वो आगे जाके तो मैं दिखाऊंगा ही। बस आपको मैं एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट समझ जाइए, मजा आ जाएगा आपको। फिर यू विल रियली, यू विल बी लाइक, मतलब आपको फिर कोई, यू नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना और समझना है। ग्लोबल, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, यूएस टेक 100 कैसे फॉलो कर रहा है वो देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, कहाँ पे फॉलो कर रहा है देख लीजिए। ऑयल कहाँ पे है, ठीक है, ऑयल की पर बैरल क्या वैल्यू चल रही है वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप रीजनल मार्केट देख लीजिए। रीजनल मार्केट में आप एशिया में रहते हैं, तो एशिया के मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, चाइना, जापान, रसिया। ठीक है, लाइक दैट, जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं। फिर आप नेशनल लेवल पे चले आइए। ठीक है, आपका गिफ्ट निफ्टी कैसे खुल रहा है, क्या चीजें वहां पे हो रही हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक और एक्सचेंज स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जब मार्केट लाइव चल रही है, उस समय आप सेक्टोरियल वाइज उसको देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपका ग्रीड है जो आपको डुबा देता है। वरना 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी या निफ्टी। आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी ट्रेड कर लेंगे ना। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में भी अगर आप खाली स्टॉक पहचान के ट्रेड करना सीख गए, ठीक है, तो यहां से भी आप इजीली पैसे बना सकते हैं। इंडेक्स में जाके, जो ये फेरारी वाली गाड़ी चलती है इनकी, जो आप वोलेटिलिटी संभाल नहीं पाते, या जो स्टॉप लॉस है, या जो भी आपकी हंटिंग होती है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक्स आर मोर देन एनफ टू मेक मनी, बट लोगों को वो समझ नहीं आता। लोगों को, हम, मैंने आपको शुरू में बताया ना, आई टोल्ड यू ऑल इन द इनिशियल फेज ओनली, डोंट फॉलो द क्राउड। डोंट फॉलो द क्राउड। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है। डोंट फॉलो द क्राउड, ऑलवेज थिंक अगेंस्ट, बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। क्राउड का पार्ट रहिए, बट एनालाइज कीजिए, ट्राई टू एनालाइज इट, हाउ, कैसे वो जा रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। मैं भी इस सब बाई 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 किए जा रहे हैं, मैं भी बाई बाई किए जा रहा हूं, तो फिर मेरे और उनमें अंतर क्या रहा? फिर मैं एक अच्छा ट्रेडर कैसे हुआ? ठीक है, डोंट फॉलो द क्राउड, be the part of the crowd, try to understand the emotions of the crowd, try to understand the legitimacy of the crowd, है ना। तब जाके you can understand कि हाँ, मार्केट में मैं भी काम कर सकता हूँ। 9:15 से 3:30 के बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी, अगर से निफ्टी में गए, निफ्टी 50 में इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लिया, उसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाके सेक्टोरियल वाइज एनालिसिस कर ली, कौन सा सेक्टर आज ऊपर है, कौन सा सेक्टर है आज नीचे है, उसको देख लिया। जो ऊपर है वहां पे सीई का साइड का ट्रेड बन जाएगा,
जो नीचे है वहां पी के साइड का ट्रेड बन जाएगा, सी के साइड में फिर टॉप गेनर्स सेक्टर वाइज देख लिए, वहां से उठा लिया स्टॉक, टॉप लूजर सेक्टर वाइज देख लिए, वहां से उठा लिया स्टॉक, 5 स्टॉक इधर उठाया, 5 स्टॉक अरे कहीं ना कहीं सब में किसी ना किसी तरीके से तो मूवमेंट कहीं ना कहीं आ ही रही होगी ना। बट हमें क्या आदत है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यू हैव टू डू लेबर, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। हमें क्या आदत है बचपन से स्पून फीडिंग की, ये बचपन से चला आ रहा है। ठीक है, माँ ने खाना बना के अपने हाथों से हमारे मुंह में डाला। ठीक है, स्कूल गए तो स्कूल में पढ़ाई चली, सब कुछ हुआ, और फिर टीचर ने कह दिया कि लिखो गेस क्वेश्चन सब लिख लो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, 100 क्वेश्चन टिक मरवा दिए, उसी में से आएगा बाबू 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। एनालिसिस करने की तो आदत कभी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लगाई नहीं जाती है। रटंत विद्या का कमाल है सारा, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। तो ये एनालिसिस की एनालिटिकल स्किल कहाँ से आएगी, ये आती ही नहीं। ये नहीं आती तो उसी का परिणाम है कि हमें ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती हैं। ठीक है तो बीइंग अ पेरेंट, अगर आप एक पेरेंट हैं या आप पेरेंट बनेंगे फ्यूचर में, या आप एक यंग स्टूडेंट हैं, कभी भी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपनी क्लास में कभी भी टॉप 10 में नहीं आया। अगर आप सोचते होंगे तो बेवकूफ़ी है आपकी, मैं कभी टॉप 10 में नहीं आया। आई वॉज अ बैक बेंचर। मुझे बैक बेंच पे बैठ के सबको सुनने और देखने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, आई वॉज, मैं कभी टॉप 10 आया ही नहीं। आई वॉज अ वेरी प्रिटी एंड एवरेज स्टूडेंट। इन 10th समवेयर आई गॉट अराउंड 75 to 80%। इन 12th सेम आई गॉट अराउंड 75 to 80%। आई वॉज पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स और मैथ्स में बड़ा मन लगता था। ठीक है, इट वाज लाइक दैट, मतलब जो भी क्वेश्चंस एराइज होते थे वो मैं अपना बना के एकदम रख के रखता था। लेकिन जब क्वेश्चंस के लिए जब टीचर बोलते थे किसने पहले बताया, तो मैं पहले कभी हाथ नहीं उठाता था, मैं चुपचाप बैठा रहता था। जब क्वेश्चन बोर्ड पे एनालाइज हुआ या किसी ने सॉल्व किया, आंसर मैच होता था, तो मैं खुश होता था मनी मन की, यस। मेरा ध्यान हमेशा से, आई थैंक्स टू माय पेरेंट्स फॉर दिस, उनका ध्यान कभी भी इस पे नहीं था कि मैं रैंकर बनूं। उनका ध्यान कभी इन चीजों पे था ही नहीं कि मैं क्लास में टॉप। आप एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जो भी किया, अगर वहां पे 150 लोग थे, ठीक है 150 लोग थे, मैं आपको बताता हूँ, एक जब एक ना नॉर्मल सिनेरियो, 2 सेक्शन 3 सेक्शन रहे होंगे, एक में अगर 40-50 लोग थे तो 150 लोग थे टोटल, 150 स्टूडेंट्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन, मैं कभी भी टॉप 10 में नहीं आया, कभी कुछ नहीं था, बट आज इन 150 में से अगर 5 लोग भी कहीं थ्राइव कर रहे हैं, मैं इन सबसे आगे हूँ, इन इन कंपैरिजन टू देयर टोटल नेटवर्थ, इन कंपैरिजन टू देयर लीडिंग ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। आई एम वे फार, क्योंकि हमारी स्कूल की अपनी कम्युनिटी है, सब लोग हैं, सब एक दूसरे के ग्रुप में हैं, सब जानते हैं। आई एम फार, अब फार फार उन, देखिए, हो सकता है इनकी पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो, बहुत, मैं इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ, मैं इन सबसे बहुत आगे हूँ। ठीक है, तो नेवर एवर अपनी जिंदगी में ये ठान लीजिए, अपने बच्चों से या किसी भी बच्चे से या किसी भी तरीके से किसी को भी उसके रैंक से, उसके नॉलेज को जज मत कीजिएगा। डोंट डू दैट एवर इन योर लाइफ, नेवर। ठीक है, गया वो जमाना जब हम किसी के घर जाके उसको बच्चा, बेटा एबीसीडी सुनाना, बेटा टेबल सुनाना, बेटा राइम सुना रहे, तुमको तो बहुत कुछ आता है। नो, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, यू आर लिविंग ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑन दिस अर्थ, यू विल हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट। आज का जमाना अलग है। आज एक 12 साल का बच्चा एक बहुत बड़ा यूट्यूबर और महीने के करोड़ों रुपए छाप रहा है। तो कौन कहाँ से कैसे क्या बन के निकल जाएगा, यू नेवर नो। ठीक है, मैं अपने क्लास में कभी टॉप 10 में आया ही नहीं, टॉप 10 छोड़ो, टॉप 20 में भी नहीं आया कभी। ठीक है, और मैं आज इन सब से बहुत आगे हूँ। इंडिविजुअल नेटवर्क की अगर बात करें, टॉप 5 में जो कोई रहा होगा, किसी ने आईआईटी से पढ़ाई की, किसी ने एनआईटी से पढ़ाई की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ठीक है, कोई आज कितना भी कमा रहा होगा, कितना कमा रहा होगा, कोई आईआईटी दिल्ली जैसे या आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा होगा। ठीक है, किसी ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया होगा, कितना कमा रहा होगा, महीने का 5 करोड़ साल का 5 करोड़ कमा रहा होगा, या 10 करोड़ कमा रहा होगा, यही कमा रहा होगा ना। ठीक है, कितना जमा कर लिया होगा उसने 10-15 ईयर्स में, क्या किया होगा, और एकदम से तो उसके 5 करोड़ 10 करोड़ का पैकेज नहीं लगा, किसको लगता है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें कलेक्टिव नेटवर्थ की, मैं तो कहीं टॉप 10 में भी नहीं हूँ, टॉप 20 में भी नहीं हूँ। तो आज मैं क्यों आगे हूँ, क्यों? तो पढ़ाई जो है ना, जो हम पढ़ते हैं, हम आपने मैंने सबने 10th में इतनी सारी ज्योमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 11 12 में पता नहीं क्या 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 पढ़ा है।
आप अपनी डेली लाइफ में उसको कहाँ कहाँ यूज कर पा रहे हैं? कहाँ कहाँ ज्योमेट्री से आप मेजरमेंट करते फिरते हैं? है कहीं ट्रेडिंग में आप कहाँ कहाँ ज्योमेट्री का यूज कर पा रहे हैं? नहीं। स्टडी इज द वे टू मेक यू अ सोशल ह्यूमन बीइंग। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, एक पर्टिकुलर चीजें हैं, उसके बदौलत आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, सामाजिक इंसान बन सके, बस वो है। हमने क्या किया? स्टडी को, मैं स्टडी के खिलाफ नहीं हूँ, ये कभी नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। स्टडी है तो आप स्कूल जाते हैं तभी आप बोलना सीख पाते हैं, आप एक सोशल मैन बन, एक छोटा सा बच्चा, एक बच्ची जो है वो एक सोशल बॉय और एक सोशल गर्ल बन के निकलता है। ठीक है, दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर कैरेक्टर, दैट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग आवर सेल्फ। बट उसका कहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मिल रहा है उससे? ठीक है, व्हाट इज कमिंग फ्रॉम देयर, क्या चीजें आ रही हैं वहां से? ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन यही है दैट यू हैव बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव डेवलप्ड अ कैरेक्टर। ठीक है, बट उससे आपकी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज देयर इज नथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर लाइफ फ्रॉम दैट। आप उस अपनी लाइफ से, कि आपने अपने स्कूल में इतना अच्छा, आप हो सकता है अपने स्कूल में टॉप 10 में रहे होंगे, आज आपकी हालत दयनीय होगी, ये भी हो सकता है, इट कैन हैपन लाइक दैट। तो नेवर जज एनी वन अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी। कौन क्लास में टॉप, हमेशा इस चीज रैंक से किसी की जिंदगी को आप एनालाइज कीजिए ही मत। हम अपने बचपन से हमें यही चीजें दिखाई और समझाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम भी इसके शिकार बने पड़े हैं। आप उसके नॉलेज से उसको जज कीजिए। ठीक है, बीइंग अ ट्रेडर आप मुझे जज करेंगे तो वो गलत है। मैं टॉप 10 में, इंडिया के टॉप 50 ट्रेडर्स में भी नहीं हूँ, टॉप 50 छोड़ो, टॉप 1000 में भी नहीं, बट जहां भी हूँ आई एम गुड, आई नो समथिंग गुड। ठीक है, तो किसी को भी उसके नॉलेज और एनालिटिकल स्किल से जज कीजिए। मैंने जब से होश संभाला, जब से अपने आप को देखा, जब से अपने आप को एनालाइज किया, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ सीखने पे थी, लर्निंग पे थी, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी भी फॉर्म में आए। ठीक है, मेरे को जब टीचर बोलता था कि अ ट्रेन इज कमिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बर्ड इज कमिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, एंड बोथ आर गोइंग टू स्ट्राइक ईच अदर विथ व्हाट वेलोसिटी, तो मैं इस चीज को सिर्फ देख नहीं रहा हूं, मैं इस चीज को इमेजिन भी कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ब्रश करते हैं अपने दांतों को प्रॉपर ब्रश करते हैं, आप सुबह सुबह क्या लगा रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं? ठीक है, आप गेट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, आप वहां पे क्या लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है? तो बच्चों को ना, आपके घर में अगर बच्चे हैं या इन फ्यूचर होंगे, उनको इन चीजों पे फोकस कराइए, ना कि ये टू वन जा क्या होता है, टू टू जा क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आवर वंडर व्हाट यू वांट, ए बी सी डी एंड नो, दिस इज नॉट द लाइफ। जो जितना सीखेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ट्राई टू बी द एनालिटिकल पर्सन, ट्राई टू एनालाइज। हमसे आगे यूरोप के, यूएस के, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लोग क्यों हैं? बिकॉज दे फोकस, इतने सारे नोबेल प्राइज विनर्स सारे बाहर से क्यों हैं, इंडिया से क्यों नहीं है? बिकॉज देयर फोकस इज ऑन लर्निंग, रियल लर्निंग, एनालिटिकल लर्निंग। हमारा फोकस क्या है? स्पून फीडिंग। ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से पहले गेस्ट पेपर आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन पढ़ लिया, उसी में से 20 आएगा, पढ़ के पास हो गए, ग्रेजुएशन कर गए। नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं, बिहार यूपी की जो जो कल्चर चलते हैं वेस्ट में, कहीं भी इट इज लाइक दैट। ठीक है, बट योर फोकस शुड बी ऑन द रियल स्टडी, एनालिसिस पे। उस समय नहीं किया आपने, मैटर नहीं करता है, अब तो कोशिश कीजिए। ठीक है, बिना इसके आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे, विदाउट दैट यू आर नो गोइंग टू अचीव नथिंग इन योर ट्रेडिंग। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, दिस यू विल हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन इट। कभी भी आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे यहाँ पे, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ लाइक दिस। ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डेवलप द एनालिटिकल स्किल, और मैं उसी चीज की आपको आदत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक बच्चे से आप बचपन में पूछते हैं, बेटे बड़े होके क्या बनोगे? कोई बोलता है मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनूंगा, कोई बोलता है आईएएस बनूंगा, कोई बोलता है आईपीएस बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है कुछ बनूंगा, कोई बोलता है और हर 2 साल 2.5 साल के बाद जब उनकी समझदारी बदलती जाती है, उनकी प्रायोरिटीज और उनके गोल भी चेंज करते जाते हैं। बट नाउ वी ऑल आर इन ट्रेडिंग, हम एक मैच्योर्ड कम्युनिटी हैं, हम चीजों को देख सकते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं। तो वी डिसाइडेड टू बिकम अ ट्रेडर। कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, कैसे जा सकते हैं, ट्रेडर का क्या गोल होता है, किन चीजों से उसको दूर रहना चाहिए, क्या चीजें हैं जो उसको अच्छा बना सकती है। ठीक है, तो फ्रॉम डे वन मेरी प्रायोरिटी आपको उस रटाने पे नहीं है। आप ट्रेडिंग में क्या रटोगे यार? ट्रेडिंग में कुछ रट सकते ही नहीं।
एवरीथिंग इज एनालाइज। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या है? ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग तो प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आप उतना अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, बात खत्म है। भगवान तो कोई नहीं बन सकता ट्रेडिंग में। कल मैं बोल दूं कि भाई कल मार्केट 600 पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता तो भैया फिर तो क्या ही कहने। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी। आप अपनी लर्निंग से, अपने एनालिटिकल स्किल्स से ट्रेडिंग में अपनी प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांग करते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांग करते जाएंगे आप ट्रेडिंग में, उतने अच्छे बनते चले जाते हैं। आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती चली जाती है। दैट्स इट। कौन सा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है? ठीक है, बट हमारे लिए क्या है, हम हर चीज को वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अ हवा, है ना। हमें हर चीज को हवा बनाने की आदत हो चुकी है बचपन से, है ना। क्या है, कैसे है, इस चीज को कैसे समझा जाए, उस पर फोकस नहीं होता है। फोकस होता है कि बस किसी तरीके से स्पून फीडिंग हो जाए। कोई हमें चार पांच छह इंडिकेटर बता दे, सिखा दे, हम उसी इंडिकेटर के बस बदौलत हमें बाई सेल का सिग्नल मिल जाए, हम बाई सेल कर लें और डेली पैसा छापें। ऐसा थोड़ी होता है। इट विल नेवर वर्क लाइक दिस। ये होगा थोड़ी कभी। ठीक है, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी जो आपने पीछे नहीं किया है अपनी जिंदगी में, उस चीज को अभी भी कर लेंगे आप 6 महीने साल भर, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपके पास आपका गोल है, CAGR इज योर गोल, है ना, जो आपने अपने लिए बनाया है। और आप करोड़पति बन सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आपको अपनी ग्रीड कंट्रोल करनी है, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करनी है, आपको अपना ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मैंने सब दे दिया है आपको। ठीक है, अब उस रेसिपी को बनाने के लिए, आपकी रेसिपी है आपका CAGR, वो एक अल्टीमेट रेसिपी है जिसको आपको टेस्ट करना है। वहां कैसे पहुंचेंगे, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, वो भी दे दिया है, वो भी लिख के दे दिया है। ठीक है, अब उस रेसिपी का जो बेस्ट पार्ट है, जो लर्निंग पार्ट है, अभी हम वो कर रहे हैं। ठीक है, सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उस पर बस चलना है। सब कुछ तो खुद ही करना है, कोई नहीं आएगा करने के लिए। एवरीथिंग यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आसान नहीं है बट यस, इट इज अचीवेबल। आप सबने कहा है ना, हाँ सर मुश्किल तो नहीं लगता है, हो जाएगा। पर हो जाएगा कैसे होगा? ठीक है, तो मैं वही बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप समझते हैं। दिस इज नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग टास्क, है ना। इस चीज को आप आराम से इजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी को भी अपने घर में भी इस कल्चर को डेवलप कीजिए। ट्राई टू डेवलप दिस कल्चर इन योर हाउस ऑल्सो। नेवर जज एनी पर्सन ऑन देयर क्लास परफॉर्मेंस, ऑन देयर रैंकिंग, लाइक दैट। उनके नॉलेज पे आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। ट्राई टू अप्रिशिएट देम ऑन देयर नॉलेज। उनकी स्किल को बढ़ाइए, उनके सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस को इनहेंस कीजिए। ठीक है, आप आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं, है ना, आपका बच्चा अभी बाहर से खेल के आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, वो उससे उसको बताइए तुमने गेट बंद किया, यहाँ पे कौन सा क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम बेटा जो ये सुबह में जो ये टूथपेस्ट यूज करते हो, एवरीथिंग इज साइंस, है ना। हमारी पूरी की पूरी बॉडी बायोलॉजी है। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री। एंड जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब फिजिक्स है। हम ब्रश कर रहे हैं, हम अपने हाथों से अपने ब्रश को रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं। वो क्या है, क्या मतलब, इस तरीके से अपने बच्चों के अंदर इन क्यूरियोसिटीज को जगाइए। अपने आप के अंदर इन क्यूरियोसिटीज को जगाइए। लर्निंग इज अ वेरी डिफरेंट एंड डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है ना। सिंपल सा है, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा। क्या न्यूटन से पहले किसी ने सेब को पेड़ से गिरते हुए नहीं देखा होगा? देखा ही होगा, सबने देखा होगा। बट उसके पास सोचने की क्षमता थी, तो उसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन निकाल दिया, उसने ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। ट्रेडिंग में अगर आपको एनालाइज करना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज सिखाने की अंत अंत तक कोशिश करता रह रहा हूं। आप उस CAGR को ऐसे ही पा पाएंगे। ठीक है, ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स, नेवर जज एनी वन एज पर देयर रैंकिंग, एज पर देयर परफॉर्मेंस। नहीं, आप मेरे को मेरी रैंकिंग से, मेरे परफॉर्मेंस से जज कर रहे हैं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी से जज कर रहे हैं। क्यों आप इंप्रेस्ड हैं मेरे से? क्यों आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? क्योंकि आपने मेरी एक्यूरेसी देखी है। आपको लगता है यस ही इज अ गुड ट्रेडर, ही रियली हेल्प्स अस इन गेटिंग प्रॉफिट, देन ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो गेटिंग, ही हैज हैव सम गुड नॉलेज। ठीक है, तभी तो आप मेरे साथ हैं। ठीक है, इट इज लाइक दैट ओनली। ऐसे ही है, आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कीजिए। मैं सच बता रहा हूं, इतना भी आसान, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ निफ्टी निफ्टी और रात दिन जो निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी करते रहते हैं, वो भी करने की जरूरत नहीं है।
बस इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझ जाइए एक बार, और इनके एग्जैक्ट जो इनके लेवल्स हैं, जो इनके सपोर्ट हैं, जो इनके रेसिस्टेंस है, जो आप मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, जो आप बॉलिंजर बैंड पढ़ेंगे, जो लीडिंग लीडिंग इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उनका डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, उनसे उनको पहचानना सीख जाइए सर। बस काम हो गया। उसके बाद तो बस आपको बस जो अपना आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, वो बोलते हैं ना ट्रेडिंग में 80% इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% इज योर ट्रेडिंग स्किल्स। ठीक है, बस वही है, 20% हम सीखेंगे, 80% तो हमें खुद करना। ठीक है, दैट इज द थिंग। जो अपनी ग्रीड पे काबू कर लेगा, जो अपने ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंस को समझ जाएगा, जो अपने गोल पे फोकस्ड होगा, वो अचीव कर लेगा सब कुछ। आपको क्या लगता है, यूट्यूब पे जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स गाते रहते हैं, इतनी सारी दुनिया प्रॉफिट गाती रहती है, ये करती रहती है, वर्क की करती रहती है, ऐसे बहुत से साइलेंट ट्रेडर्स भी होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो 5 स्टार होटल्स में ही रहते हैं, वही उनका घर है। उठते हैं सुबह सुबह आराम से 8 बजे, ठीक है, चाय वाय पिया, कॉफी वॉफी पी, नाश्ता वास्ता किया, आराम से 3-4 घंटे ट्रेड किया, ठीक है, 4-5 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए जो भी है वो छापा, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज देयर लाइफ। ठीक है, हर चीज कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे करते हुए। आप भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के लैपटॉप और फोन को यूज करके, अगर आपके पास स्किल्स है, आप पैसे कमा सकते हैं। आज के टाइम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है। इट इज द टाइम, इट इज द नीड कि आप अपने आप को प्लीज पहचानिए। ठीक है, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो आप बहुत कुछ अपने लिए पा सकते हैं। ठीक है, इट इज लाइक दैट। अब देखिए, अब फिर हम फर्दर एक अलग इसके इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को खोलेंगे। इसके इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को जब हम खोलेंगे तो ये शीट हमारे सामने, सॉरी ये निफ्टी की खुल गई, एक मिनट, निफ्टी बैंक, ये रहा ना। हम्म, ये रहा। ठीक है, ये सारे के सारे निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इंदर सिंह, कोटक, पंजाब, स्टेट बैंक। इसमें मैंने आपको टॉप 5 बैंक बता दिया है। ये टॉप 5 बैंक मिलके पूरे एचडीएफसी के 75% शेयर्स को कंट्रोल करते हैं। बस 5 मूवमेंट, 5 बैंकों पे मूवमेंट आप बस 4-5 महीने ये कीजिए ना, 4-5 मंथ्स, इनके टॉप 5 स्टॉक्स पे मूवमेंट पे नजर रखिए। निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 लूजर्स, टॉप 10 गेनर्स, निफ्टी में सबसे पहले सेक्रेटोरियल स्टडी कर लीजिए। आज कौन कौन सा सेक्टर ऊपर है, कौन कौन सा सेक्टर नीचे है। जो ऊपर है वहां से उसके सेक्टर के हिसाब से स्टॉक्स को छांट लीजिए, जो नीचे है उसके हिसाब से उसके स्टॉक्स को छांट लीजिए, उसके मार्केट कैप के हिसाब से उसको इजिली। मैं आगे आपको बताऊंगा कि और इजिली कैसे 2000-3000 स्टॉक में से हम 50-100 स्टॉक कैसे राउंड अप कर सकते हैं। उसमें से टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स निकाल लीजिए, बस बैठ के 5 स्टॉक इधर के चुन लीजिए, इधर के चुन लीजिए, डेली के 2%, 4% जो आपका टारगेट है, यहीं से पूरा हो जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को तो छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट वही है, सेल्फ बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन इफ यू हैव नो सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बिलीव तो अपने लिए, अपने आप पे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेटेज पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एंड वेटेज पे फोकस जरूर कीजिए। ठीक है, वेटेज का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने शुरू से मैं बार बार इस चीज को, क्योंकि आगे जाके हमारा जो पढ़ाई का स्टाइल है, हमारा जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे चली जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको शुरू से जो बताया है, प्लीज उस चीज पे आप लोग कायम रहिए। ठीक है, तो अगर आप सही में अपने लिए वो CAGR नाम की जो चिड़िया है उसको अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने आपको हर हाल में जो स्टार्ट किया है, बार बार मैं वहां लेके जा रहा हूं। मैंने आपको बताया है, आइडेंटिफाई योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस टू कम इन ट्रेडिंग। आपने अपने लिए एक गोल बनाया है, दैट गोल इज योर CAGR। डेली मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, डेली। ठीक है, दैट डेली मैं आपको इस चीज को याद दिला रहा हूँ, दिस इज द CAGR इज योर अल्टीमेट गोल। ठीक है, उसमें फिर आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाल रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, आपने आपसे आप पूछ रहे हैं, आस्किंग योर सेल्फ। ठीक है, आपका टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, आपके टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी ट्रेडिंग का जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग, आप इस गोल को कैसे अचीव करेंगे।
ठीक है, आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा ये गोल कैसे अचीव होगा, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी। ठीक है, बस एक देखो, हर इंसान, इंसान इंसान मीन्स बिंग क्या, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपको आपकी मिस्टेक्स बहुत अच्छे से पता है। सालों पहले जब मैं एक टाइम पे 75-80 लाख के लॉस में हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे जब मैं अपने सीनियर, अपने गुरु जी के पास जाके जब मैंने ट्रेडिंग सीखने की कोशिश की, उन्होंने मुझे एक ब्लैंक शीट दिया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, और उस पे मुझे उन्होंने कहा था कि आज तुम एक टाइम पे बीइंग अ बिगनर्स लक, मेरे को मार्केट ने बिगनर्स लक बड़ा अच्छा दिया। मार्केट ने मेरे को खूब भर भर के प्रॉफिट दिया। ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पहले मतलब मैं ऑब्वियसली पढ़ाता था। कभी अपनी कहानी, आप में से बहुत सारे लोग तो पहले जब उस सुनियोधा वाले पे थे तो मुझे जानते ही हैं, अगर उसके अलावा भी नहीं है तो मैं कभी आपको अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिजिक्स और मैथ्स आई वॉज वेरी गुड। मुझे अच्छी नॉलेज है फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, अब तो मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ मैं। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज, डूइंग माई बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम एनआईटी वारंगल, उसके बाद आई वेंट, मतलब डायरेक्टली आई वेंट टू गुवाहाटी। वहाँ पे मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और उस टाइम पे मुझे याद है बैक इन 2011-12, उस समय मुझे 1.5 लाख हर महीने मिलते थे, 4 क्लासेस लेने के। ठीक है, तो मतलब एक बैचलर, और मेरी लाइफ में ऐसे मुझे ना कोई नशे की आदत, ना कोई ऐसा कुछ, ना कोई गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ कुछ नहीं था। ठीक है, लाइक दैट। तो आई वॉज हैविंग नो एक्सपेंसेज, और मैं आराम से अपने लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था बैठ के कि आई हैव टू कंप्लीट इट, है ना। फिर ऐसे करते करते टिल द टाइम आई ज्वाइंड अ बैंक, यूपीएससी नहीं हो पाया, 3-4 बार ट्राई किया, 2 बार मेंस भी लिखा, नहीं हुआ, एक अलग मैटर है। ठीक है, व्हेन आई ज्वाइंड द बैंक इन 2014-15, मुझे लगभग मतलब 18 लाख के हिसाब से मेरे पास उस टाइम पे कम से कम मुझे याद है 45-50 लाख की इंडिविजुअल सेविंग थी मेरे पास। फिर बैंक में जब नौकरी की, ट्रेडिंग में मैं आया हूँ 2016-17 में। ठीक है, तब तक मतलब टोटल मिला दे तो मेरे पास अराउंड समवेयर अराउंड 50 लाख प्लस की सेविंग थी, प्लस इतनी सेविंग थी मेरे पास। जब ट्रेडिंग में आया मुझे बिगिनर्स लक भी मिला। बिगनिंग बिगनिंग में मैंने आराम से 25-30 लाख का प्रॉफिट भी किया, ड्यू टू बिगनर्स लक। आपकी तरह ही मैंने जंप किया ट्रेडिंग में, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस बाई सेल किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं, इक्विटी, उसके बाद इंट्राडे, इंट्राडा से एफ एंड ओ में फिर वो सारी कहानी कभी उस पर बात होगी, चर्चा होगी। ठीक है, तो ये सब मिला के मेरा अपना 50 लाख और प्लस ये जो प्रॉफिट्स हुए थे, मतलब एक टाइम पे आई वाज हैविंग 75-80 लैक्स। समवेयर इन माई हार्ट एंड माइंड आई वाज नोइंग दैट आई नीड अ रियलिटी चेक। आई वॉज फ्लाइंग लाइक समथिंग। मेरे को लगता था मैं डेली के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख निकाल रहा हूँ। अरे भाई, बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, मेरे घर वाले लोग ऐसा तो नहीं है कि अडानी अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बीइंग एज अ मिडिल क्लास पर्सन मैं सीधे यही कैलकुलेट करता था, 20 दिन ट्रेडिंग होती है, डेली के 3 लाख, 5 लाख छाप रहा हूँ, मतलब महीने के 60 लाख से 1 करोड़ हो गया, बहुत है। आराम से जिंदगी चल जाएगी, अरे फिर तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस दुनिया में जाएंगे, उस दुनिया में जाएंगे। इट वॉज लाइक दैट। बट मार्केट गिव द रियलिटी चेक, है ना। मार्केट ने सबसे पहले अपना प्रॉफिट वापस लिया। मार्केट का अलगो ही ऐसा है, 10 में से 7 बार आपसे लेगा और 3 बार आपको देगा। ठीक है, आप 3 बार उस लेने की उम्मीद में 7 बार मार्केट को पैसा देते हो। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट, 70% मार्केट विल टेक फ्रॉम यू, 30% टाइम्स मार्केट विल गिव यू। ठीक है, ये लाइक इस तरीके से चलता है। तो मार्केट टेक टुक ऑल द प्रॉफिट। तो मेरे को ये था, चलो मार्केट का प्रॉफिट था, उसने वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कमा लेंगे। कमाया था, वापस ले लिया, फिर से फिर। बट समवेयर इन माई माइंड आई वॉज नोइंग कि मेरी गलतियां क्या क्या हैं, व्हाट आर माई मिस्टेक्स। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक, नो लर्निंग। नो लर्निंग। पैसा जब आ रहा होता है ना, तो दिमाग का जो दिमाग की जो बत्तियां होती हैं, दो लाइट्स होती हैं ना, वो बंद हो जाती हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। ठीक है, यू फील लाइक यू आर द किंग, आपसे बड़ा कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, नो लर्निंग। दूसरी गलती थी मेरी, ओवर ट्रेडिंग। मेरे को मार्केट ने अब जाके 6-7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है भाई, डेली का 1.5%, 2% भी बन जाए बहुत बड़ी बात है। एक टाइम पे अगर मैं ये सोचता कि अरे डेली का 1.5-2%, भाई क्या बात कर रहे हैं, 10%, 15%, 20% से नीचे बने तो उस दिन तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, ये बीइंग अ ट्रेडर जो बेवकूफ था, जो अपने आप को अपने घमंड में चूर था। आज एक समझदार ट्रेडर है, एक मैच्योर ट्रेडर है, जो सोचता है डेली का 1.5-2%, 3%, 4% बन गया बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग
मुझे मार्केट ने सुबह सुबह 20 मिनट में ही, मैं अगर 15 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को मार्केट ने 1.5 लाख दे दिए, मैं उस 1.5 लाख को और बढ़ा 3 लाख 5 लाख बनाने के चक्कर में बैठा हुआ हूं। ठीक है, मतलब वहां पे मेरी ग्रीड। ठीक है, नो डिसिप्लिन, नो रिस्क मैनेजमेंट, नो मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं दिस वाज द थिंग, है ना। तो एक टाइम पे फिर मार्केट ने मुझसे अपना प्रॉफिट भी लिया, मेरा कैपिटल भी लिया, और उसके बाद मेरे से मतलब मार्केट में कमाने के लालच में मैंने फिर लोन्स उठाए। ऐसे करते करते मेरे ऊपर एक टाइम पे, आई स्टिल रिमेम्बर, 60 to 70 lakhs का सिर्फ लोन था। ठीक है, बैंक में था, इजिली पर्सनल लोन मिल गया, इजिली ओवरड्राफ्ट मिल गया, इजिली कार लोन मिल गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो सैलरी 50-60 हजार सैलरी आती थी। एक पीओ की सैलरी कितनी होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की? यहाँ से सैलरी आती थी, यहाँ पे सैलरी चली जाती थी। ठीक है, ईएमआई मतलब एक एक मतलब 3-3 4-4 दिन में डिप्रेशन में रूम से बाहर नहीं निकल पाया, ऐसी हालत हो गई थी एक टाइम पे। ठीक है, तकिया में बस मुंह लगा के रोता रहता था कि करूं तो करूं क्या अब। घर वालों को बता नहीं सकता, घर वालों को बता दूंगा चलो जमीन वमीन बेच के कहीं पे कुछ करके अपनी पीएफ एफडी वफडी सब तोड़ के, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरे लिए कर देंगे। और फिर वहां से चलो, फिर मेरा तो, लेकिन मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट जो अपने फादर के सामने मैं आंख मिला के उनसे बात कर पाता हूँ, जो चीजें मैं उनको बता पाता हूँ, वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मुझे पता था कि ट्रेडिंग ही एक ऐसी दुनिया है, ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे इतने शॉर्ट टर्म में ये सब कुछ बनाया जा सकता है। नौकरी करके तो आई वुड हैव रिटायर्ड इन 2050, और 2050 तक मुझे तब एनपीए, अब तो पेंशन वेंशन सब खत्म हो गया, उस टाइम में 2 करोड़ मिलते। आज से 15 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू विल बी 36 lakhs। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट करेंगे तो वैल्यू डिप्रिशिएट्स, मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाती है। ठीक है, 15 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स छोड़ दीजिए, 5 6 7 ईयर्स के बाद जिस तरीके से अब जो चीजें चल रही हैं, 1 करोड़ रुपए अभी बस 5 8 सालों के बाद ही ये 50 60 लाख बन जाएंगे। ठीक है, 2 करोड़ से क्या ही होता उस जमाने में, पता नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है, अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाके आदमी सुसाइड कर लेता है, बहुत सारी चीजें करता है। बट मुझे था कि ट्रेडिंग ही एक ऐसी दुनिया है जिससे मैं वापस अपने आप को पा सकता हूँ, अपने आप को रीडिस्कवर कर सकता हूँ, ये सारे डेब्ट्स को खत्म कर सकता हूँ, ये सारी चीजों को कर सकता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली फिर होता है ना कि जब रियलाइज हो जाता है, फिर मैं अपने सीनियर के पास गया, उनसे सीखने की कोशिश की। उस इंसान ने मेरे को एक ब्लैंक शीट दी और बोला अपने मिस्टेक्स को लिखो। मैंने भी लिखा, 2017-18 मैंने भी लिखा है इन मिस्टेक्स को, यही मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप भी अपनी मिस्टेक्स ब्लैंक पेपर, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं हमेशा, हम दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, हम पूरी दुनिया को बरगला सकते हैं, कुछ भी कहानी सुना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट हम अपने हर्ट से, हम अपने सोल से झूठ नहीं बोल सकते। आपको जज करने का द बिगेस्ट थिंग इज योर हार्ट एंड सोल। आपका जो दिल और आपकी जो आत्मा है, ये आपको जज करने का बिगेस्ट सोल है, ये कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, तो अपने हार्ट एंड सोल से पूछ के, आपने जितने साल भी ट्रेडिंग किया, जो भी किया है, अपने मिस्टेक्स को काउंट कीजिएगा। मैं 90% ऑफ द टाइम आपको दावा ठोक के कहता हूं आपकी मिस्टेक्स भी यही होंगी। नो लर्निंग। ठीक है, ग्रीड, ग्रीड का जो मसला है वो 70% होगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, मार्केट में ड्यूटी बजाने आए ना हम, कि 9:15 में आए हैं तो जब तक 3:30 नहीं होगा तब तक तो बैठेंगे। ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, नो रिस्क मैनेजमेंट, नो मनी मैनेजमेंट, नो पेशेंस, नो डिसिप्लिन। इतने मिस्टेक्स आपके भी निकल के आएंगे, गिन चुन के 5 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। यही होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, 5 मिस्टेक्स ठीक नहीं कर सकते क्या अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए? मेरे सामने तो दो ही रास्ते थे, या तो मैं ट्रेडिंग से वापस अपने खोई हुई इज्जत को, खोई हुई चीजों को पाऊं, या फिर मैं इस दुनिया को छोड़ दूं। बस यही दो रास्ता था मेरे पास। ठीक है, बट मरने का कभी दिमाग में आया ही नहीं, आई नेवर थॉट ऑफ ट्राइंग टू एंड माई लाइफ, क्योंकि मेरे लिए ये था कि लाइफ यू गेट वंस, एक ही बार मिलती है, पता नहीं अगले जन्म में मिले ना मिले, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, इट वॉज लाइक दैट, सो आई ट्राइड। ठीक है, बिगनर्स लक को बिलीव छोड़ा, स्टार्टेड लर्निंग, रियल लर्निंग, जो लर्निंग करनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, जो मार्केट को 75 60 70 लैक्स दे के जो सीखा, जो लॉस हुआ, जो मिस्टेक्स हुए, क्योंकि मेरे को पता था लर्निंग इज द ओनली कर्व, ट्रेडिंग इज द ओनली फील्ड जहां से मैं वापस अपनी खोई हुई चीजों को वापस पा सकता हूँ, और बहुत जल्दी पा सकता हूँ। और नहीं तो कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, कुछ भी मेरे को इतनी जल्दी मेरे सारी मुसीबतों से दूर नहीं कर सकता है। आई स्टार्टेड लर्निंग 6 to 7 months,
आई टुक लीव, है ना, बीमारी के बहाने पता नहीं क्या क्या करके करके, लॉस ऑफ पे लेके सब कुछ करके आई टुक लीव एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। पूरा सीखा, 6-7 महीने मेरे उस भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। नाउ तो ही इज माई बिजनेस पार्टनर। ठीक है, उस टाइम पे ही सपोर्टेड मी लाइक अ गॉड, नेक्स्ट टू गॉड लाइक थिंग। ठीक है, एंड उसके बाद अगेन आई केम बैक, समहाउ आई मैनेज 6 to 10 लाख रुपीज टू स्टार्ट ट्रेडिंग बैक। ठीक है, और फिर वहां से शुरू की जर्नी। जब वहां से जर्नी शुरू हुई तो यकीन नहीं करेंगे आप, 2017 2018, मतलब ये तो पूरा लॉस का कवर रहा है। 2018 के सितंबर अक्टूबर से लेके, ठीक है, 2019 के सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर, आराम से अच्छे से याद है, 8 to 9 lakhs का कैपिटल था। वहां से आई स्टार्टेड। ठीक है, 19 में कोविड की सुगबुगाहट इस टाइम तक शुरू हो चुकी थी, बाई दिसंबर, जनवरी से, 2020 के जनवरी से कोविड वाज देयर। ठीक है, उस टाइम तक मैंने, मतलब इस 8 लाख से अपना ट्रेडिंग स्टाइल सही किया, प्रॉफिट बनाया, जो लॉस था उसको खबर खत्म किया। मतलब कोविड के स्टार्ट होने से पहले आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज हैविंग अ टोटल कैपिटल ऑफ 96 lakhs। ये मेरा अपना था, दिस वाज माइन। ठीक है, सारे डेप्ट सब कुछ खत्म करने के बाद मेरे पास 96 लाख रुपीज बचे हुए थे, सब कुछ खत्म करके। मीन्स आई गॉट एवरीथिंग आउट, मैंने जो भी मेरी गलतियां थी उन सब पे। और यकीन करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, आप सोचोगे प्रूफ दिखाओ, यार ये दुनिया के सवाल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप हजार प्रूफ मैं क्यों दिखाऊं आपको, क्या मतलब है उससे। जस्ट आई एम शेयरिंग माई फीलिंग्स विथ यू ऑल। 1 लाख से ना 100 लाख तक पहुंचने में सब सारी दुर्गति हो जाती है, एवरीथिंग विल गो। आपको नानी दादी, आपकी अम्मा, आपकी मम्मी, ठीक है, पापा, दुनिया जहान सब याद आ जाएगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग। क्या फिर उसके बाद लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ ना, लॉस तो हुआ ही हुआ, बट नाउ रिस्क वाज मैनेज्ड। क्योंकि देखो, मैं एक चीज जानता हूं, जब आपके पास जिंदगी में पता हो आपको कि अब मैं या तो खत्म या तो बनना है, जब वैसी नौबत आ जाती है ना जिंदगी में, तब इंसान जाग उठता है, तब इंसान सोचता है नहीं भाई, अब तो करो या मरो की स्थिति है। उस टाइम पे फिर आप एकदम अलग लेवल के इंसान बन के निकलते हो, शायद मैं भी उस टाइम पे वैसे ही था। ठीक है, तो 1 से 100 लाख पहुंचना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए, शिद्दत चाहिए। बट एक बार जब ये आप 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का मैजिकल फिगर, एक पे जो ये 7 जीरो हैं, इसका जब आप एक मैजिकल फिगर अचीव कर लेते हैं ना, उसके बाद इट इज जस्ट अ नंबर गेम। फिर तो आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं पता है? आपको लगता हो, आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो, 1 करोड़ मेरे पास आएगा, सीएजीआर कैलकुलेट करके आपके हाथ पांव फूल गए होंगे 2-3 साल के बाद। पावर ऑफ सीएजीआर ऐसा होता है। सीएजीआर कैसे चलता है पता है? स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे चलता है, फर्स्ट ईयर ऐसे ऐसे चलेगा, सेकेंड ईयर ऐसे ऐसे चलेगा, थर्ड ईयर ऐसे ऐसे चलेगा, और फोर्थ ईयर सीधा ऐसे ऐसे चलेगा, फिफ्थ ईयर सीधा ऐसे चलेगा, सिक्स ईयर सीधा ऐसे चलेगा। तो शुरुआत में छोटे 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 स्टेप्स ही आगे जाके एक एक पूरा का पूरा कलेक्टिव स्टेप बन जाता है। इट इज लाइक दैट। ठीक है, ये 1 से 100 लाख कमाने में सच, अभी आपको लगता होगा 1 करोड़ बनाना बाप रे बाप कभी बनेगा ही नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच में आप बना सकते हो, ये बहुत आसान है ट्रेडिंग की दुनिया में, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताऊं, इतना आसान काम है। बस वही है, हर दिन यू हैव टू गिव अ टेस्ट। टेस्ट क्या? यू हैव, जो आपके मिस्टेक्स हैं, आपने उन पांचों मिस्टेक्स को जिस दिन रिपीट कर दिया, एक भी या दो भी, ट्रेडिंग में बैक टू जीरो, यही ट्रेडिंग की कहानी है। अगेन इट विल, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, रीस्टार्ट। 12th फेल देखा है ना, रीस्टार्ट, फिर से रीस्टार्ट, इट इज लाइक दैट। जिस पांचों बॉक्सेस टिक जिस दिन होते रहेंगे, उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन आपके पांचों बॉक्सेस में से 2-3 बॉक्सेस भी फेल हो गए, फिर से रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो। ट्रेडिंग की यही दुनिया है। ठीक है, ये इस तरीके से चलती है। तो 1 करोड़ जब आपने कमा लिया ना, व्हेन यू हैव अर्नड 1 करोड़ फॉर योर सेल्फ, इंडिया में 100% पॉपुलेशन की अगर बात करें, स्टिल 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन तो टैक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। 5 लाख 7 लाख जो टैक्स फ्री इनकम है, उतना तक भी नहीं पहुंच पाते लोग। अभी भी हमारे इंडिया में 75 to 80% पॉपुलेशन लिव्स इन द मंथली सैलरी एवरेज ऑफ 25K to 50K, 25-50 हजार रुपए। अरे आप गांव की स्थिति जाके देखिए, लोग 250-250-300 रुपए पे डेली लेबर मिलते हैं।
ठीक है, हम और आप ट्रेडिंग में आके पैसों की कीमत भूल चुके हैं, बट असलियत कुछ और है इस देश की। ठीक है, क्योंकि हम अपने ग्रास रूट्स लेवल को, हम अपने गांव की जिंदगी को, वो सारी चीजों को भूल चुके हैं। एक बार उन सब चीजों को जाके रियलाइज कीजिए, देखिए आपको समझ में आएगा वह वैल्यू ऑफ मनी क्या है। मैंने देखा है बैंक में नौकरी करते हुए, जब मैं अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में पोस्टेड था, एक ट्राइबल औरत जो है 500 रुपये पेंशन लेने के लिए आती थी, पहाड़ से नीचे, पत्तों से ढक के अपने आप को, पूरा वो ट्राइबल जो उनका ड्रेस होता है, और 500 रुपये पेंशन पे वो पूरा महीना गुजार देती थी। मैं ये सोच के दंग रहता था कि 500 में कोई अपनी जिंदगी कैसे चला सकता है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में मनी की वैल्यू को नहीं समझते हैं, मनी के इमोशन को नहीं समझते हैं, पावर ऑफ मनी नहीं समझते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं एक एक रुपए जमा कर करके अपने लिए घर द्वार, आपको पढ़ाना लिखाना सब कुछ किया उनकी हिसाब से, उनकी समझदारी के हिसाब से। आप भी कर सकते हैं। मैनेज योर फाइनेंसेज, तरीका बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, अभी भी इंडिया का 75 to 80% पॉपुलेशन 25 से 50 हजार रुपए में अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए बना लिए, यू आर इन द टॉप 5% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। आप 5% में आ गए अब। ठीक है, उसके बाद हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेज, हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, वहां से चीजें बदलती हैं। मैंने, होता है ना, कहते हैं ना, जब आप पूरी शिद्दत और जान लगा के किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो सारी सारे स्टार्स वगैरह अलाइन होते हैं। मेरे लिए भी वो स्टार अलाइन हुआ और मुझे मिला कोविड। कोविड वाज तो गेम चेंजर भाई, कोविड वाज द गेम चेंजर। पता है, लेवल्स पता है, सारी चीजें पता है। मार्केट सुबह उठो, ऐसी हालत थी कोविड में, 1000 रुपए डालो, 5 मिनट के बाद 5000 रुपए निकालो, ऐसी हालत थी। ठीक है, 10,000 रुपए निकालो, 5 मिनट के बाद 50,000 रुपए निकाल लो, ऐसी हालत थी कोविड में। ठीक है, और मैं भगवान का, खुदा का खुश, मतलब खुशगवार हूँ। मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे पास, भगवान ने उस समय मेरे पास लगभग लगभग 1 करोड़ का बैलेंस था, कैपिटल था, पैसे से पैसा बनता है। एंड आई वॉज रिस्क फ्री, डेब्ट फ्री, हर चीज से फ्री हो चुका था, मेंटली फुल काम में था, फुल काम मोड में था। तो उस 1 करोड़ से पूरे कोविड में, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों से क्या छुपाना, 2021 एंड होते होते, जब कोविड का फर्स्ट वेव सेकेंड वेव वगैरह थोड़ा वो हुआ, मैं इस 1 करोड़ से लगभग 22 से 23 करोड़ बना चुका था। 1 करोड़ से आप ट्रेड करोगे ना। मैंने, जब मैंने मेरी मेरे साथ जो रैपिड स्पेस पे जो मैं गया हूं, उसमें यह है कि 1 करोड़ से ट्रेड स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ, लॉस भी हुए हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं हर दिन। मैं भी भगवान नहीं हूं ना, मैं भी इंसान हूं। मेरे को भी बहुत सारी, मैंने भी अपनी जिंदगी में इतना कुछ पाने के बाद भी बहुत सारी गलतियां अभी भी की है मैंने, स्टॉप लॉस वगैरह, ये सारी चीजें होता है। ये इमोशंस, ट्रेडिंग में इमोशंस कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बट वंस वहां तक पहुंचने के बाद, इस कोविड ने, वैसे ही आपका भी मार्केट, जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जान लगा के जब आप मार्केट को में काम करेंगे, जब आप मार्केट में अच्छे से अपने लिए सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट आपका भी साथ देगी। इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, देगी। मार्केट सबका है। ठीक है, मार्केट सबका है बॉस, मार्केट सबकी सुनता है, सबको सबको देता है। मार्केट साथ देता है। ठीक है, मार्केट विल ऑल्सो रेस्पेक्ट योर इमोशंस ऑल्सो। ठीक है, तो समझिए, 1 करोड़ की जर्नी 22 करोड़ पे जाके, मैंने मतलब पूरा कैपिटल लगा के ट्रेडिंग की थी, बेखौफ बेअंदाज दिमाग से। और सही में ये 2-3 साल तो शायद मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब 22 करोड़ कमाए होंगे तो उसमें से 5-6-7 करोड़ फिर से मार्केट लॉस लेके दे चला गया होगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बचा लिया। मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी लॉस होते हैं, मेरे से आज भी होता है। ठीक है, मेरी प्रोबेबिलिटी मुझे कुछ और कहती है, मैं कुछ और लेके चला जाता हूँ। इमोशंस में आदमी कर जाता है गलतियां, मेरे को भी लॉस हो जाता है। बट नाउ 90% of the time my risk is managed, my money management is done, I know my disciplines, I know my mistakes, I daily repeat my trading journal। किस टाइम पे कौन सा ट्रेड लिया, क्या सोच के लिया, उसमें लॉस हुआ, क्या मैंने स्टॉप लॉस काटा नहीं काटा, वो पूरा एनालाइज होता है। ये डेली का रूटीन है। ठीक है, नाउ आई वेट फॉर माई लेवल्स, कि वे लेवल आएंगे, देन आई एम गोइंग टू डू द ट्रेड। इस तरीके से जिंदगी यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ट्रेडिंग में। सच बता रहा हूँ, मैं अब जाके पीछे की चीजों को जब देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे दिखाई और समझ में आता है कि मैं कितना बड़ा गधा था, कितना बड़ा बेवकूफ था, हाउ स्टूपिड एंड डम आई वॉज। ठीक है, मैंने 100 रुपए पे खरीदा किसी चीज को, अभी वो चला गया 90 रुपीज पे।
फिर वो चला गया 80 रुपीज पे, मैं निकल गया। फिर वो 80 से सीधा 115 पे आ गया, मैं फिर घुस गया। फिर वो 115 से फिर 70 पे आ गया, मैं फिर निकल गया। फिर वो 70 से वापस आया और फिर वो 150 मार के चला आया। ऐसा आपके साथ भी कई बार होगा। ठीक है, आपने कोई कॉल खरीदी होगी 300 की, पुट में घुस गए होंगे आप, आपको लगा होगा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, 300 का जो है वो 115 120 चला गया होगा। आपको आदत लगी हुई है सेम डे बाई सेम डे सेल करने की, आपने शाम में अपना पोजीशन काट दिया होगा। अगले दिन मार्केट गैप गैप डाउन खुल गई और जो 300 का कॉल था वो उस दिन 600 पे। ऐसा होगा, बहुत बार होगा। तो क्या आप अफसोस मनाएंगे? नहीं, आप अफसोस थोड़ी मनाएंगे। दीज आर द मिस्टेक्स फ्रॉम विच यू विल लर्न। आप सीखेंगे, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ। आज थोड़ा सा हिंट दिया है, कहानी बहुत है इसमें। ठीक है, CAGR को अपनी दिमाग में बिठा लीजिए। दिस इज योर अल्टीमेट गोल। ठीक है, वो आपके लिए आपका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए। यकीन कीजिए, ट्रेडिंग कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये विश्वास मैं आपको डेली दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और हमेशा करने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ट्रेडिंग आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। योर अल्टीमेट गोल इज योर फ्लो चार्ट बनाते हैं ना हम, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो मेन होता है, तो CAGR जो है वो आपका मेन गोल है। ठीक है, CAGR इज योर मेन गोल। अब आपने 10 ईयर्स के बाद क्या पाने के लिए अपने लिए डिसाइड किया है वो आप जानो। ठीक है, वहां से फिर आप जब नीचे आ रहे हो तो इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपने आप से कुछ सवाल किए हैं, क्या मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा या नहीं। फिर उसके बाद आपने अपने लिए टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि क्या जो ये गोल मैंने डिसाइड किया है इसको मैं किस तरीके से और कैसे अचीव करूंगा। ठीक है, फिर आपने अपना पर्पस डिसाइड किया है कि आपका क्या पर्पस है। ठीक है, कहने को ये कहानी है जो मैंने आपको बताई है। फिर आपने यहाँ से अपनी मार्केट साइकोलॉजी को डिसाइड किया है कि मैं किस साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे काम करूंगा। मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, मार्केट विल प्ले योर विथ योर इमोशंस। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है आपके पास, यू हैव योर ब्लूप्रिंट इन माइंड। ठीक है, मार्केट के जो ट्रैप्स हैं उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है। दिस इज द ब्लूप्रिंट जो आपको मिल गया है, जो आपको अचीव करना है अपने लिए। अब उस ब्लूप्रिंट का जो डिटेल्ड एनालिसिस है, जो स्टडी है, नाउ वी आर डूइंग दैट। अब हम उसको कर रहे हैं, अब हम उसको करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम वहां पे हैं। ठीक है, अब आप जब चीजों को और 2 3 4 5 10 क्लास के बाद आपको लगेगा सही में कि यार ट्रेडिंग में जो रात दिन वी टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, सिर्फ यहीं तक दुनिया नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है। लाइफ इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो, इसके आगे भी सही में दुनिया है। ठीक है, मैं निफ्टी के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जान जाऊं, जैसे मैं आज ने आपको बताया है फर्दर, निफ्टी के जो वेटेज होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिक सेक्टर है, 5 5 स्टॉक पे अगर डेली के टॉप गेनर टॉप लूजर उठा लूं तो डेली का 2 3 5% जो मैंने CGR अपने लिए डिसाइड किया, कोई बड़ी बात नहीं है इसको अचीव करना। मैं खुद कर सकता हूँ, इजिली कर सकता हूँ। अब उसको करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, जो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो सारी चीजें हैं, उसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न दैट। और बस उसको सीख जाइए। एक बार सीख गए, उस पर प्रैक्टिस कर लिया आपने 6 6 8 महीने, फिर आपका हाथ तो कोई पकड़ने वाला होगा नहीं। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो वन इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क रहा, आपको नोट्स बनाना है। निफ्टी का वेटेज, उसके सेक्टर्स, कितने सेक्टर, ये सब मुझबानी याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है ना, निफ्टी में टोटल इतने सेक्टर्स हैं, इसमें इतनी कंपनीज है, इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका P/E अभी इतना चल रहा है, बैंक निफ्टी के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसका इतना परसेंटेज है। ये सारा आपके पास मेंटेन्ड होना चाहिए। ये कहाँ मेंटेन्ड होगा? आपकी डायनामिक डायरी में। स्टैटिक डायरी में आप ये नोट नहीं बनाएंगे, डायनामिक डायरी में बनाएंगे, ताकि आपको क्लियरली पता हो। ये चेंज होता रहेगा हर क्वार्टर में, तो इसको आप पेंसिल से लिखेंगे, इसमें करंटली आप हर चीज को फिर फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब एक ट्रेडर के नजरिए से आपकी नजर कहाँ कहाँ होनी चाहिए, मैं वो चीज आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है, उस चीज को आपको भी जानना और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा ब्रेड्थ वेड्थ जो भी ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, समझाई हैं, थोड़ा खुद से भी डिटेल्ड एनालिसिस इसको कीजिएगा। ठीक है, आज कल सैटरडे है, कल भी क्लासेज होंगी, परसों भी क्लासेज होंगी।
ठीक है, तो कल आपके जो भी डाउट्स वाउट्स जो भी चीजें होंगी वो मैं कल आपसे फिर फर्दर बात करूंगा। बाकी जो भी आपका मैंने बता ही दिया, जो कुछ पेंडिंग अपॉइंटमेंट लेटर, वो बॉन्ड वॉन्ड जो भी है, उसको बैठ के मैंने नेक्स्ट वीक हर हाल में बोला है। बाय ट्यूसडे वेडनेसडे आई एम होपिंग कि माई मदर विल बी कमिंग होम नाउ, सी इज स्टेबल, अब वो स्टेबल है। तो उसके बाद सी विल कम होम एंड आई विल गेट माई मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, एंड उसके बाद फिर आराम से फर्दर जो भी पेंडिंग काम है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक प्लीज फोकस, पूरी जब तक हम साथ हैं, जस्ट ट्राई टू लर्न, सीखते चले जाओ। जो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हो सकता हूँ, आप मेरे से बहुत छोटे हो सकते हो, हम सेम एज भी हो सकते हैं, बट बीइंग अ रिलेशन, हम उस रिलेशन में जहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ और आप मुझसे कुछ ले रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज फॉलो मी बाई हार्ट। मैं आपको कभी भी जब सिखा रहा हूँ, जब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, कोई धोखा नहीं करूंगा। जो है जैसे है मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके उस चीज को करना है। यू हैव टू डू दैट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो ये अपना नोट्स पूरा डायनामिक तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए। अब आप थोड़ा थोड़ा मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से। अपना पूरा एक प्रॉपर सीट बनाइए। कल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बैंक निफ्टी है मेरे पास, ट्रेडिंग व्यू में मेरा पूरा अरेंज रहता है, निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी मिड कैप, ठीक है, लाइक दैट। फिर टॉप 5 बैंक्स एडेड रहते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, फिर निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एडेड रहते हैं, फिर मैं वहीं से इजीली उसको कैसे क्या देख पाता हूँ, क्या चीजें हैं, वो मैं फिर आपको फर्दर आगे बताऊंगा। कॉपी मत कीजिए मुझे, डोंट ट्राई टू कॉपी मी, ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, गिव योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू डू बेस्ट इन योर लाइफ। आप अपना बेस्ट दीजिए, मार्केट आपको सच में भर देगा, इतना भर देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते यार। आपको लगता होगा मैं ख्याली पुलाव नहीं बता रहा, मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ, और ये बहुत हद तक मुमकिन है। कैलकुलेशन कहती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह रही है कि ये मुमकिन है, फिर आप नहीं करेंगे तो उसमें मैं क्या करूंगा। ठीक है, इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन इन अ वेरी गुड मैनर। बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आप जा रहे हैं यहाँ से। रिकॉर्डिंग फिर चली जाएगी, पूरा होमवर्क कंप्लीट कीजिए, कल पढ़ाऊंगा भी और फिर आप लोगों से बात भी करूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।